Bismillahirrahmanirrahim. We just had something about the wind erosion. Now, some of the factors like size of particles, wind velocity, we have discussed, touched it in the previous lecture. Now, this lecture is devoted to the factors which is affecting wind erosion. There is an equation written there which is E equivalent to F into ICKLV. So this we would explain. These are the factors which we have. This slide has been there. I placed it almost in every lecture for various groups which can get benefit out of it. Power of wind erosion depends. That is the erodibility or strength of the wind to cause erosion or the severity depends upon soil erodibility, that is whether the soil is erodible or not, soil surface roughness, while the soil is smooth or rough, climate and weather, whether it is a dry weather, wet weather, climatic conditions कैसी हैं, velocity, turbulence और duration of the wind. ये चार चीज़ें बड़ी important हैं which can cause differences in the, you can say, outcome of the eroded area. Role of soil moisture. Soil moisture जिस तरह के मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा कि हम छिड़काव क्यों करते हैं, मीन्स मकौले उड़ के खासकर छिड़काव को बोले सैन छिड़काव को दगाव को रोड छिड़काव को दगाव को चे खौर वानलू से चे डस्ट वानलू से ये ऐसी सास्ते करने हैं कि मिट्टी न उड़े. Wetness is there. So susceptibility to wind erosion is related to the soil moisture contents. Moist soil cannot be eroded, cannot be taken up by the windy situation. Moisture contents are evaporated by hot dry winds. लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि hot और dry wind हो तो moisture contents evaporate हो जाते हैं, leaving the soil dry. Then it becomes too susceptible. So moist soil cannot be blown by the wind. Wind speed of about more than 20 kilometer. Last time I said some 19.1 kilometer, that is 12 mph, can initiate soil movement. This is the threshold level, that is कि अगर किसी विंड की स्पीड 12 मील पर आवर है या 20 किलोमीटर पर आवर है, इक्वलेंट है मोर और लेस, तो सॉइल मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है. आप देखिए कि वैसे तो इट डज नॉट मूव, हालांकि हवा तो हर वक्त होती है एनवायरनमेंट में, बट इट डज नॉट कॉज मोबिलिटी. Wind velocity of higher than 30 km per hour carries more particles causing damages. अगर 30 किलोमीटर या से ज़्यादा होंगे तो जाहिर है कि फिर ज़्यादा नुकसान होगा. या ये जिस तरह हम कहते हैं कि कोई टाइफून आ गया है, विंड आ गई है, तो ये आप देखें कि वो जो विंडी सिचुएशन है दे आर more devastating, moving from one continent to another continent, moving from one country to another country. So winds की जो ताकत है depends upon the duration and velocity. Wind erosion equation, W. Various factors controlling wind erosions are grouped in V equation. The rate and the magnitude. The rate means speed, magnitude how much wind can be, soil can be eroded,
by wind is controlled by the factors. ये रेमंड और ब्रैडी के किताब में लिखा हुआ है, वहीं से ये पहले ब्रैडी और कोई और था इसके साथ। अब ये ब्रैडी साहब तो मर गए हैं, तो रेमंड ने इसको रिवाइज किया है, हिज नेम इज़ फर्स्ट। तो ये इक्वेशन जो है, ई मीन्स मूवमेंट, एफ फैक्टर, ICKLV. Now let's see what is these ICKLV. This is V equation. Whereas E is the erosion loss, E stands for erosion loss. How much erosion has occurred? How much soil has been eroded? How much soil has been moved? I, erodibility factor, whether the soil itself is erodible or not. अगर क्लेई सॉइल है और वेट है या ड्राई है तो कुछ भी नहीं मूव करेगा या बहुत कम मूव करेगा। बट इफ़ इट इज़ अ सैंडी सिचुएशन, लूज सॉइल है तो ज़्यादा मूव करेगा। अगर आपने हल चलाया हुआ है, ट्रैक्टर चलाया हुआ है और हवा आ गई तो ज़्यादा मूवमेंट होगी। क्लाइमेट अगर वेट है, बारिश हो गई है या रेनी सीज़न है या विंटर सीज़न है तो ज़ाहिर है कि less movement would be there, soil would not be carried out as easily as it is in a dry conditions. Soil roughness, if soil is very smooth, soil particles can be moved very easily. But if it is rough, ऊपर नीचे है, स्टोन पड़े हुए हैं, इसमें कंधे कपारे हैं, ब्याबा मूवमेंट स्लो हुई। विड्थ ऑफ द फील्ड कि जी वो कितना विड्थ है, लेंथ है और वेजिटेशन कवर कितनी है, ये चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं। सॉइल एरोडेबिलिटी, फाइन और मीडियम साइज पार्टिकल्स आर लिफ्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर डिस्टेंस। दैट इज फाइन पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल क्ले पार्टिकल्स हैं, सिल्ट पार्टिकल्स हैं, मीडियम साइज पार्टिकल हैं। और अगर कोर्स ये ज़्यादा दूर तक जाएंगे हवा से, उसी हवा से अगर इसमें मोटे पार्टिकल पड़े हुए हैं, स्टोन पड़े हुए हैं, पेबल्स पड़े हुए हैं, तो प्रॉबली दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट बी टेकन अप बाय द विंडी सिचुएशंस। कोर्स पार्टिकल्स आर ब्लोन सॉल्टेशन के थ्रू टू शॉर्टर डिस्टेंस, दैट इज़ यहाँ से थोड़ी वहाँ तक, फिर वहाँ तक, फिर छोड़ देते हैं। Abrasion due to sand loaded wind reduces soil particle size that promotes soil erodibility. अगर sand loaded particles हों, it is moving along a surface, it is moving in a group, तो ये abrasion cause करती है, collision cause करती है। This colliding forces, abrasion forces that reduces the size of the particles, छोटे हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है, तोड़ फोड़ से एरोडेबिलिटी बढ़ जाती है। Soil have different erodibility due to their inherent feature like texture, structure, or cloudiness. Erodibility, the capability of the soil to erode or to resist erosion, ये मुख्तलिफ है, inherent है। Texture, fine textured soil, dry, highly erodible. Fine textured soil, clay soil, dry wet conditions में least erodible. स्ट्रक्चर क्या है? अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, लूज है, ज़्यादा होगा। क्लाउडीनेस ज़्यादा है तो डिफरेंट सिचुएशन। क्रॉप्स एंड देयर रेजिड्यू इम्प्रूव सॉइल एग्रीगेशंस। कोई भी जो क्रॉप और रेजिड्यू होता है ये सॉइल एग्रीगेशन काज करता है। सॉइल एग्रीगेशन से soil के चैप्टर में we had studied that finer particles, many fine particles, they aggregate together, they bind together, binding occur, thereby making an aggregate particle which behaves like a coarse particle. अब ज़ाहिर है वो जो coarse particle है वो larger है, is a combination of many fine particles that resist. It cannot be blown up by the wind easily. Bigger an aggregate is, lesser will be the chance of blowing.
जितना एग्रीगेट बड़ा होगा, टफ होगा, वो कम मूव करेगा विंड की वजह से। टिलेज ब्रेक्स एग्रीगेट, ये जो हम टिलेज हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, गोड़ी चलाते हैं, या इस तरह की हरकतें करते हैं खेतों में, तो उससे एग्रीगेट टूट जाते हैं और वो साइल लूज हो जाता है, और वो लूज साइल देन इज एरोडेबल। Early melting of snow or lack of snow cover exposes the soil surface to alternate freezing and thawing. एक और है जी कि those area where soil freezes, snow cover पड़ा हुआ है, तो अगर अर्ली मेल्टिंग हो जाती है तो पानी बह जाता है, सॉइल एक्सपोज हो जाता है, ऑल्टरनेट फ्रीजिंग और थाइंग से क्रैक्स पड़ते हैं। वो जो क्रैक्स पड़ते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू इरोजन ईजियर दैन दोज विच आर कवर्ड बाय द स्नो। इसी तरह डेली अल्टरनेट फ्रीजिंग और थाइंग इज स्पेशली इन द विंटर, दिस इज आल्सो प्रोमोटिंग erosion of the soil, breakage of the soil aggregates, thereby promoting wind erosion. Conservation tillage makes larger soil aggregates. जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, खाद डालते हैं उसमें, या कोई केमिकल डालते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, तो उससे एग्रीगेट बनते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं कंट्रोल में। विंड स्पीड रिड्यूस हो जाती है और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बिकम लार्जर, दे कैन नॉट बी ब्लोन अप। सेकेंड फैक्टर सी है जिसको क्लाइमेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। द वेलोसिटी, टर्बुलेंस, ड्यूरेशन ऑफ द विंड डायरेक्टली इफेक्ट्स द डिग्री ऑफ साइल इरोजन। वेलोसिटी, विंड, टर्बुलेंस, गड़बड़, और ड्यूरेशन कि जी वो विंड थोड़ी देर के लिए है, लॉन्गर टाइम, अगर वो 6 घंटे चलती है और वो दूसरी 10 मिनट चलती है, तो जाहिर है कि 10 मिनट का इम्पैक्ट और 6 घंटों का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। दैट वुड मीन इफ़ यू हैव हाई वेलोसिटी, हाई टर्बुलेंट, तो ज़्यादा ड्यूरेशन होगी, तो वो डिग्री ऑफ सॉइल इरोजन वुड बी मोर। मॉइस्चर कंटेंट्स आर वेरी लो एट द सरफेस ऑफ द सॉइल, सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राउट कंडीशन जब क्रिएट होती है, ड्राइनेस क्रिएट होती है, सॉइल ड्राई हो जाता है, विंड ड्राई हो जाती है, तो ड्राउट कंडीशंस में एरिडिटी ज़्यादा हो जाती है, क्लाइमेट ड्राई होता है, एंड देन इट इज़ मोर subjected to wind erosion. This promotes transport of the particles by wind. The effect of climate also occurs in the form of freezing and thawing during winter months. Drier the climate, greater would be the susceptibility of soil to wind. अगर क्लाइमेट ड्राई होगा किसी एरिया का, समर है, या मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ हॉट वेदर, डेजर्ट्स हैं, तो इरोजन ज़्यादा होगी। के रफनेस के लिए यूज़ होता है कि अगर स्मूथ सॉइल है, आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, अगर आपके पास कंचे हैं, तो अगर स्मूथ सॉइल पे आप उसको रोल करेंगे, दे वुड मूव टू लॉन्गर डिस्टेंस। अगर रफ सॉइल है तो नहीं होंगे, कम फासला तय करेंगे। यही हाल विंड का है। विंड चूँकि पिकअप करती है, रोल करती है, सॉल्टेशन क्लास करती है, क्रीप्स क्रिएट करती है, तो जो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल होते हैं तो और रफनेस उसमें ना हो, तो वहाँ पे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी है ऑफ द सॉइल टूवर्ड्स विंड इरोजन। लेकिन अगर आप रफनेस करेंगे, खुरदरा सॉइल होगा, गड़े गड़े बीच में होंगे, ऊपर नीचे, तो मूवमेंट ऑफ विंड इफेक्ट होगी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स will be lesser than a smooth surface. Mulching आप करते हैं, use of stubble mulching on soil surface reduces wind erosion effectively. क्यों? विंड स्पीड कम हो जाती है,
विंड की वेलोसिटी कम हो जाती है, soil particles they become trapped. It provides a mechanical stability to dry clods and aggregates. Stability of the soil crust, bulk density और size erodable fraction ज़्यादा हो जाता है. Vegetation or straw mulching reduces wind erosion. So wherever there is a dry, आपने यहाँ तो हमारे इलाकों में नहीं होता, लेकिन फॉरेन में आप देखें ऑल तो जितनी रोड्स हैं, these roads are covered by grassy sides. उनकी जो विंग्स हैं ग्रासी होती हैं, पौधे होते हैं. If somewhere grass is not available, then they do mulching. घास ड्राई ऊपर रखी होती है ताकि विंड इरोजन न हो, कम हो जाए. शेल्टर बेल्ट्स एक और तरीका है जी कि हम इनको शेल्टर विंड ब्रेक्स भी कहते हैं और शेल्टर बेल्ट्स भी कहते हैं कि जी हम शेल्टर बेल्ट्स बनाएं. शेल्टर बेल्ट्स मीन्स plantation of some suitable plants to reduce the velocity of wind. नॉर्मल है, आप देखिए जहाँ भी दरख्त होंगे तो विंड वेलोसिटी कम होगी, दरख्त नहीं होंगे तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज देयर आर नो हिंड्रेंसेस, देयर आर नो चेक्स इन इट. सैंड और ड्यून बाइंडिंग प्लांट्स लाइक अकेशिया जैकमोंटियाई, सैक्रामोंजो, लाज़ूरस, लेप्टिडीनिया, पायरोटेक्निका, ये सूटेबल प्लांट्स हैं फॉर मेकिंग शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स डेजर्ट एरिया. हमारी एरिया में भी इसी तरह है. अगर आप घर के बाहर पौधे लगा देते हैं ट्रीज फार्म में, तो वो जो रोड साइड से डस्ट आएगी, आवाज़ आएगी या धुआं आएगा, वो कम हो जाएगा, बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ शेल्टर. शेड में मॉइस्चर रिटेन होता है, शेडी एरिया में मॉइस्चर रिटेन होता है. व्हेन मॉइस्चर इज देयर, wind becomes helpless. Length and width of the field. L. Greater the length, width of the field, greater would be the erosion. The width or length can be reduced by roughing the soil. So इसको इस तरह करते हैं जी कि soil को rough करते हैं, using suitable plants or making physical barriers for controlling the wind erosions. आपको एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बताएं. आप देखिए ये जो हमारे इलाकों में नहरें आती हैं, वो नहरें आप देखें जहाँ से स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे ख़त्म होती है, एक ही रो में नहीं जा रही होती. 2-3 मील के बाद उसमें एक डिप क्रिएट करते हैं, पानी थोड़ा सा स्लोप करते हैं, ऊपर से नीचे गिरता है. अब ये जो चीज़ है, वी आर रिड्यूसिंग द लेंथ. अगर वो उसी स्पीड से जाएगा तो स्पीड तेज होती जाएगी. कॉमन है हमारे स्वाबी में. इसमें आप देखिए कि आफ्टर सर्टन 1 मील 2 मील के बाद समटाइम्स अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है तो थोड़े थोड़े वक्फे से ब्लॉकेज है और फिर गिरता है, फिर नीचे आता है और स्पीड वाटर की कम हो जाती है. सेम इज ट्रू फॉर एयर कि जी अगर आप लेंथ उसकी कम कर देंगे, ब्रेकेज करेंगे, कोई गड़ा खोद देंगे, छोटा सा ब्लॉक बना देंगे, तो इसकी एग्जांपल रोड्स पे देख रहे हैं. जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो किस लिए? स्पीड ब्रेकर इसलिए जी कि स्पीड कम है. वो जो स्पीड ब्रेकर है, दे कैन आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द स्पीड ऑफ द विंड. सो वही एग्जांपल आप यूज़ करें, यू वुड सी कि देयर इज वेजिटेशन कवर. ज़ाहिर है कि वेजिटेशन कवर इज़ अ prominent hindrances in the way of wind. विंडी सिचुएशन में देखें हम दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं, साए में खड़े हो जाते हैं, शेड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शेल्टर बेल्ट्स के तौर पे काम करते हैं. इनको हम विंड ब्रेक्स भी कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स भी कहते हैं. दे रिड्यूस wind erosion because loose, dry, bare soils
are more susceptible to wind. Soil is trapped, wind is reduced, moisture is retained, so the strength of the windy power that reduces. Crop produces sufficient residues which may provide enough protection. क्रॉप्स का जो रेजिड्यू है, जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, तो आप देखें वो क्रॉप्स ऊपर से गिर जाती हैं लेकिन नीचे से सॉइल इज़ नॉट एरोडेड. लेकिन किसी उसी एरिया में अगर एक ज़मीन पे क्रॉप्स नहीं है, सादिन पे होते हैं, बेयर एरिया है, तो उस बेयर एरिया में से डस्ट उड़ेगी, क्रॉप्स वाले में नहीं उड़ेगी. बिकॉज क्रॉप और वेजिटेशन कवर इज़ प्रिवेंटिव measure. Vegetation cover, this is another. Vegetation cover reduces velocity and improves soil moisture, traps more particles. Shelter belt may be one or more rows of trees, shrubs planted at right angles to the direction of the wind, checking the wind erosion. Benefits of shelter belts. Windbreaks or shelter belts offer following benefits. जी सबसे पहले तो जी कि ये विंड स्पीड को रिड्यूस करेगा, सॉल्टेशन वाले मूवमेंट को रिड्यूस करेगी, प्रोटेक्ट करेगी क्रॉप्स को विंड इफेक्ट से, प्रोटेक्ट करेगी परमानेंट इंस्टॉलेशन को, प्रोटेक्ट करेगी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से रिडक्शन टेम्परेचर बढ़ाकर, और प्रोटेक्ट करेंगी लाइफ स्टॉक को. कंट्रोल ऑफ विंड. हम विंड इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दो अप्रोचेस हैं कि आप विंड इरोजन को दो अप्रोच से, एक तो एक इम्प्रूविंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल बाय मेकिंग इट मोर रेजिस्टेंट टू इरोजन, कि जिस सॉइल को हम इतना अच्छा बना दें कि वो रेजिस्ट करें विंड की पावर. दूसरा तरीका है कि रिड्यूस विंड वेलोसिटी, कि हम विंड की वेलोसिटी को रिड्यूस करें फॉर डिक्रीजिंग एरेसिव पावर. सो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. फिजिकल कंट्रोल मेथड्स में सॉइल को हम रफ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन वुड पोल्स कर सकते हैं, वुडन प्लैंक्स लगा सकते हैं, कोई भी बैरियर हम विंड के कर सकते हैं. मल्चिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉरेन में रोड साइड के जो विंग्स हैं इन पे ग्रास होती है या मल्चिस ड्राई मटीरियल पड़ा होता है या बाज़ औक़ात प्लास्टिक शीट से कवर किया होता है. केमिकल मेथड्स हैं कि जी कोई केमिकल स्प्रे कर दें आप सॉइल पे ताकि वो टफ हो जाए. अक्सर दो चार केमिकल्स हैं, क्यूरस है, विटामिन है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं. तीसरा अप्रोच जो नेचुरल है, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं. बायोलॉजिकल मीन्स कि जी हम उसके ऊपर क्रॉप लगाएं, किसी ज़मीन को, किसी खेत को, किसी एरिया को ब्लैंक ना रहने दें, कल्टीवेट करें. कल्टीवेट नहीं है तो उसमें ग्रेजिंग लैंड बनाएं, घास उगाएं, घास नहीं है तो फॉरेस्ट बनाएं, कुछ न कुछ उसमें आप कल्टीवेट करें ताकि हवा की स्पीड चेक हो, सो डैट वी कैन चेक इट. शो erodable soil shorter distances at which maximum flow occurs. Biological control methods में soil organic matter you can add. Added organic matter की दो है, तो ये कवर करेगा, एग्रीगेशन क्रिएट करेगा, फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी को करेगा. क्रॉप रोटेशन हो सकती है जी कि आप मैनुअल एप्लीकेशन करें, क्रॉप रोटेट करें, लिग्यूम क्रॉप, नॉन लिग्यूम क्रॉप या फर्टाइल और नॉन फर्टाइल को यूज़ करें. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू.